Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. When in the evening the smoke began to curl up from the cowsheds, and the cicalas chirped in every bush, when the mendicants of the Baul sect sang their shrill songs in their daily meeting place, when any poet who had attempted to watch the movement of the leaves in the dense bamboo thickets would have felt a ghostly shiver run down his back, the postmaster would light his little lamp and call out, रतन हेलो मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर and I welcome all of you to this brand new episode of Word Match. These are the lines from a short story called The Postmaster by our very own Nobel Prize winner Rabindranath Tagore. He was the first ever non-European to win the Nobel Prize for Literature. आज का हमारा एपिसोड उन्हीं की कहानियों और कविताओं पर बेस्ड है. रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि होने के साथ साथ एक लेखक, गीतकार और एक पेंटर भी थे. एंड ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता कि बचपन से हम जो स्कूल में देश का राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं वो भी उन्होंने ही लिखा था. वेल, टॉकिंग ऑफ स्कूल्स, वी हैव 3 टीम्स रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स इन टुडेज शो. आइए मिलते हैं हमारी आज की टीम से. हमारी पहली टीम है रायन इंटरनेशनल मुंबई से. वर्ड मैच पे आप दोनों का स्वागत है. थैंक यू. प्लीज अपने बारे में बताइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बताइए और वो आपके बारे में बताएंगे. आई एम सरिता एंड शी इज अर्पिता. आर यू इन द सेम क्लास? नो, शी इज इन 8th एंड आई एम इन 7th. आप बताइए. I like to be with her. She's very talkative. Very talkative. Let's call our second team, please. St. John's from Chandigarh. Welcome to Word Match. Thank you. Thank you. Please tell us something about yourselves. My name is Shaurya and I'm from Chandigarh St. John. My name is Chaitanya Anand Sharma. I am from Chandigarh St. John's High School. Let's call our next school, please. Edify School from Nagpur. Welcome to Word Match. Please अपने बारे में कुछ बताइए. I'm Brijesh Tiwari from Edify School. I am Tithi Agrawal from Edify School, Nagpur. आप बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने कहाँ सुना होगा पहली बार? रोज आप उनको एक बार याद करते हैं, आपको पता है? हाँ, कब याद करते हैं? नेशनल एंथम जब गाते हैं. रविंद्रनाथ जी ने एक और कंट्री के लिए नेशनल एंथम बांग्लादेश. बिल्कुल ठीक कहा. एंड ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे हैं. व्हाट एन अचीवमेंट. उनके बारे में कुछ और बातें करें. हाँ, द पोस्टमास्टर रविंद्रनाथ टैगोर की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है. ये एक ऐसे जवान शहरी आदमी की कहानी है जो रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन किसी दूर गांव में पोस्टमास्टर की नौकरी करने आया है और जिसको अपने घर की और घर वालों की याद हमेशा सताती रहती है. और क्योंकि उस गांव में उसका अपना कोई दोस्त नहीं है सिवाय एक छोटी सी लड़की के. आप जानते हैं इस कहानी के बारे में? हाँ. रविंद्रनाथ टैगोर was a polymath, a master of many fields and of languages. He wrote in a variety of ways in different languages. But today, we will ask you to work with only
2 languages. कौन सी? English and English. तैयार है आप लोग? ठीक है, तो आइए खेलते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है Lost in Translation. इस गेम में हम आपको कुछ हिंदी के शब्द देंगे। हम चाहते हैं आप हमें उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे और ये एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स और हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। समझे आप? आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आपका पहला शब्द 30 पॉइंट्स के लिए नीर। सेंट जॉन्स चंडीगढ़ ने बजर दबाया है। Water. And what is the correct answer for 30 points? Well played. आपका दूसरा शब्द है छत। 85 स्कूल नागपुर ने इस बार बजर दबाया है। Terrace. Terrace. सही जवाब है for 30 points. Well played 85 स्कूल नागपुर। अगला शब्द मूस। Milk. मिल्क गलत जवाब तो -10 पॉइंट्स। मूस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है माउस या चूहा। चलिए आपका अगला शब्द 30 पॉइंट्स के लिए तीनों टीम्स तैयार है। अंतरिक्ष। सेंट जॉन्स ने Space. आपने कहा स्पेस और ये आपको 30 पॉइंट दिलाएगा। वेरी वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है 69। सेंट जॉन्स चंडीगढ़ ने फिर बजर दबाया है। 39. आपने कहा 39. अगर आप 69 कहते तो आप कमाते 30 पॉइंट्स, लेकिन अब आपने गवा दिए है 10 पॉइंट्स। 5 शब्द बाकी, अभी भी 150 पॉइंट कमा सकते हैं आप। आपका अगला शब्द है सांझ। सांझ। रायन इंटरनेशनल ने इस बार बजर दबाया। सही जवाब है for 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। ईश्वर। 85 स्कूल नागपुर आपने बजर दबाया है। आपका जवाब सही है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अच्छा खेल रहे हैं आप। काग। 85 स्कूल नागपुर ने फिर बजर दबाया है। Snake. आपने कहा स्नेक। काग और नाग में आप फर्क नहीं समझ पाए, इसलिए 30 पॉइंट के बजाय आपको मिले हैं -10 पॉइंट्स। काग यानी क्रो। मेरा अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए पालकी। Can I say in Hindi that word actually? ये गेम क्या है? हिंदी तो हिंदी नहीं है। हिंदी तो मुझे पता ही है, हिंदी तो मैं आपको बता चुका हूं। पालकी। बाकी किसी टीम को पता है? पालकी यानी डोली का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पैलिनक्विन। पैलिनक्विन। तो आपका आखिरी वर्ड तीनों टीम्स का पुतला। Puppet. आपने कहा पपेट। पुतला होता है मैनिक्विन। मैनिक्विन या स्टैच्यू भी हो सकता था, अगर आप स्टैच्यू भी कहते तो वो भी ठीक होता। तो -10 पॉइंट्स। तो इसी तरह खत्म होता है हमारा पहला गेम। तो आइए देखते हैं हमारे आज के सफर की शुरुआत कैसे हुई है। रायन इंटरनेशनल मुंबई, आपने दिया 1 सही जवाब और 1 गलत जवाब और आपका टोटल स्कोर अभी तक हुआ है 20 पॉइंट्स। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आपने 2 सही जवाब दिए, 2 गलत जवाब, यानी कि 60 कमाए, 20 गवाए, टोटल स्कोर हुआ है 40 पॉइंट्स। एडिफाई स्कूल नागपुर, आपने भी 2 सही जवाब दिए, 2 गलत जवाब, यानी टोटल स्कोर हुआ है 40। वेल प्लेड। अच्छी शुरुआत रही है। कभी कभी जिंदगी के साथ दौड़ते दौड़ते हम रूखे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। बड़े बड़े अचीवमेंट्स अपनी पॉकेट में डालने के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं और फिर दोष देते हैं कि लाइफ कितनी टफ हो गई है वगैरह वगैरह। टैगोर ने अपनी कविता प्ले थिंग्स में इसी मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया है। He talks about the difference in the perception of happiness of 2 different people. एक तरफ हम बड़े और समझदार लोग खुशियां खरीदने में पैसों की पूरी ताकत लगा देते हैं और फिर भी खुश नहीं रहते। वहीं एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में लोट-पोट होकर एक टूटी टहनी से खेलता है और दिल खोलकर हंसता है। And then, looking at that kid, उसकी उस मासूम सी हंसी को देखकर we realize कि हम अपनी सादगी को खो चुके हैं। हमारी खुशियों की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। बट आई नो कि आप लोगों के लिए खुशियों की डेफिनेशन एक ही है। क्या है? खेलना। फन और खेलना। अगर आप और भी खुश होना चाहते हैं तो आपको हमारे अगले गेम में खूब सारे पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा अगला गेम है ग्रामर गेम।
तो हम आपको 80 सेकंड देंगे और आपको 3 सेंटेंसेस का ग्रामर सही करना है। पहले में फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, कोई सही वर्ड डाल के उसका ग्रामर सुधारना है। दूसरा सेंटेंस जम्बल्ड सेंटेंस है। तीसरा जो है एकदम ही गलत है, उसको आपको ठीक करना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के, कुछ वर्ड्स कम करके। हर सेंटेंस के आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो हम शुरू करेंगे एडिफाई स्कूल नागपुर से। आपका फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है द पोस्टमास्टर ट्राइड डैश हैंड डैश राइटिंग अ वर्स डैश टू। जैसे ही आपको आ जाए तुरंत बोलिए। The postmaster tried a hand for writing a verse to 2. That is incorrect. Your next sentence is wanted go to with postmaster the Ratan home. Ratan wanted to go home with the postmaster. That is correct. Your next sentence is the girl practicing her lessons with diligently. The girl was practicing her lessons diligently. That is correct. You can go back to your first sentence quickly. The postmaster tried a hand for writing a verse for 2. That is incorrect. The postmaster tried his hand at writing a verse or 2. St. John's, Chandigarh, आपका पहला sentence है Children enjoy the simpler things dash life. As we grow older, we forget dash enjoy dash simple joys. Children enjoy the simple things of life. As we grow older, we forget to enjoy those simple joys. That is correct. Your next sentence is nursed postmaster the health to back Ratan. Words को completely rearrange कर सकते हैं. Time का भी ध्यान रखिए. Next, please. Next. The postmaster could not adjusted into village life and so he quit. The postmaster could not The postmaster could not adjust. 10 सेकंड बाकी है आपके पास. The postmaster could not adjust in the village life and so he quit. That is incorrect. And your time is up. Postmaster could not adjust to village life and so he quit. और जो आपका second sentence था, Ratan nursed the postmaster back to health. Ryan International Mumbai, आप तैयार है? आपका sentence है The postmaster found dash eager dash enthusiastic student dash Ratan. The postmaster found an eager and enthusiastic student in Ratan. That is correct. Your next sentence is the Ratan started own postmasters to her think of family as. Next sentence. आपको next sentence चाहिए. आपका sentence है the man hadn't even realizing that he had found the touchstone. The man hadn't even realized that he had found the touchstone. That is correct. आपका second sentence अभी भी बाकी है. Ratan started to think of the postmaster as her own family. That is incorrect. और your time is up. जम्बुल को सही से आप अरेंज नहीं कर पाए. अगर आप करते तो सेंटेंस बनता Ratan started to think of the postmaster's family as her own. तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम जिसका नाम था द ग्रामर गेम. तो आइए देखते हैं किस टीम ने अपने लिए कितनी खुशियां बटोरी है. सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. रायन इंटरनेशनल मुंबई और एडिफाई स्कूल नागपुर, आप दोनों ने कमाए हैं 60 पॉइंट्स ईच. वेल प्लेड. हमारे सेकंड गेम के स्कोर्स तो आपने जान लिए हैं, लेकिन अभी half the story is still to be written and there's a lot more excitement and fun still remaining on the show. But we'll be back after a small break. आप कहीं मत जाइएगा. मिलते हैं इसी निराले और अनोखे शो में जिसका नाम है वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां सारे सवाल
ICSE और CBSE के सिलेबस से लिए गए हैं। हमारे 2 गेम खत्म हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अब तक के हमारे स्कोर्स एंड विच टीम हैज रीजन टू सेलिब्रेट। सेंट जॉन स्कूल चंडीगढ़, आपका स्कोर है अभी तक का 70 पॉइंट्स, वेल प्लेड। रायन इंटरनेशनल मुंबई, आपका स्कोर है 80 और आप है सेकंड पोजीशन पे। और एडिफाई स्कूल, आपका टोटल स्कोर है 100 पॉइंट्स, वेल प्लेड। टच स्टोन एक ऐसा पत्थर माना जाता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। जी हां, इनटू गोल्ड। द गार्डनर नाम की कविता में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो पागलों की तरह सालों से उस टचस्टोन की तलाश में भटक रहा है, लेकिन वो उस तलाश में इस कदर खोया हुआ है कि टचस्टोन कब उसके हाथ आता है और कब वो उसे एक मामूली पत्थर समझकर फेंक देता है, उसे पता ही नहीं चलता। यानी कि उसे पत्थर मिलकर भी वो पत्थर उसका नहीं हो पाता। एंड दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ। हम जब किसी चीज को बड़ी बेचैनी से ढूंढते हैं, एक पागलपन के साथ ढूंढते हैं, तो कभी कभी हम नंब हो जाते हैं। हमारी सेंसेस जैसे काम करना बंद कर देती है। वो चीज हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। We get so obsessed with the whole pursuit of it that we stop listening to the universe, to our inner self. हम अपने आप की सुनना बंद कर देते हैं। हम बस एक endless pursuit में खो जाते हैं, अपने दिल के इशारों को समझना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस अगले राउंड में मैं इशारे देने वाला हूं, और अगर आप नंब हुए तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम है What's the right word? इस अगले गेम में एक राइट वर्ड है और वो राइट वर्ड आपको गेस करके दिखाना है। इस काम के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा और साथ साथ आपकी मदद भी करूंगा, यानी उस टचस्टोन की तरह मैं आपको कुछ क्लूज दूंगा। अगर आपने एक क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लूज की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, और अगर 3 क्लूज की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। ये क्लूज आपको 10-10 सेकंड बाद मिलेंगे। शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। शुरू करेंगे हम सेंट जॉन चंडीगढ़ से। चलिए, आपका पहला क्लू है सर्कमफ्रेंस। सर्कल। आपने कहा सर्कल। ये आपने राइट वर्ड गेस कर लिया है, वेरी वेल प्लेड। रायन इंटरनेशनल, आपका क्लू है वाटर। River. Connected है, it's not my right word. Keep guessing. Sea. Keep guessing. Ocean. Keep guessing. और possibilities सोचिए, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। आपका अगला क्लू है soap. Bath. And that is my right word. Well played. 2 क्लूज की जरूरत पड़ी आपको। 85 स्कूल नागपुर, आपका पहला क्लू है इंस्ट्रक्ट। Teacher. आपने पहली बार में गेस कर लिया, वेल प्लेड। तो आइए देखते हैं हमारे इस तीसरे गेम में किस टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। रायन इंटरनेशनल, आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और सेंट जॉन्स चंडीगढ़, एडिफाई स्कूल नागपुर, आप दोनों ने कमाए हैं 100 पॉइंट्स, वेरी वेल प्लेड। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर थर्ड गेम। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर देखेंगे अब तक के स्कोर्स। मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर एंड वेलकम बैक टू वर्ड मैच। चलिए देखते हैं 3 गेम्स के बाद अब तक के स्कोर्स। रायन इंटरनेशनल मुंबई, आपका स्कोर हुआ है 160 पॉइंट्स, वेल प्लेड। सेंट जॉन्स, आप है सेकंड पोजीशन पे और आपका स्कोर हुआ है 170 पॉइंट्स। एडिफाई स्कूल नागपुर, आपका स्कोर हुआ है 200 पॉइंट्स, वेल प्लेड। तीनों टीम्स के स्कोर में ज्यादा अंतर नहीं है,
और हमारा आखिरी गेम बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम है। जो टीम उस गेम में अच्छा करेगी वही जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। लेकिन उससे पहले रविंद्रनाथ जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि आज की कहानी और दोनों कविताओं में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, एंड दैट इज द थीम ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन डिजायर, यानी इंसान की कभी ना खत्म होने वाली चाहते। पोस्टमास्टर दादा बाबू की अपने घर वापस जाने की इच्छा, प्लेथिंग्स में इंसानों की धन दौलत और ऐशो आराम को पाने की जिद, और टचस्टोन की तलाश। वैसे इसमें एक और इच्छा मैंने देख ली है, वो क्या है? आप तीनों की जीतने। लेकिन इस इच्छा में कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपकी मेहनत और काबिलियत से आप जीतने वाले हैं। हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हमें कितनी तकलीफ होती है, नहीं? और हैरत की बात यह है कि ये जानते हुए भी हम अपनी ख्वाहिशों पर कोई लगाम नहीं डालते। अपनी पहुंच से बाहर की चीज डिजायर करना हमें तकलीफ में डाल सकता है, लेकिन अपनी पहुंच में दिख रही खुशियों के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है। तो आइए देखते हैं आप में से कौन उस सफर पे अगला कदम रखने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। इस स्पेलाथॉन नाम के गेम में मैं आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दूंगा। मैं चाहता हूं आप मुझे उनके करेक्ट स्पेलिंग बताएं। याद रखिएगा, ये एक बजर राउंड है। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब पे आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, लेकिन गलत जवाब निकला तो आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। Your first English word for 20 points is furtive. Edify School नागपुर। FERTIVE। और ये गलत जवाब है। फर्टिव की स्पेलिंग होती है FURTIVE, फर्टिव। 10 पॉइंट कम होते हैं एडिफाई स्कूल नागपुर आपके। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है डेस्परेट। DESPERATE। और ये स्पेलिंग आपकी टीम को देगी 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड सेंट जॉन्स चंडीगढ़, वेरी वेल प्लेड। मूविंग अहेड टू योर नेक्स्ट वर्ड, inscrutable. St. John's चंडीगढ़। INSCRUTIBLE। और ये गलत जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके कम होते हैं। inscrutable की करेक्ट स्पेलिंग है INSCRUTABLE। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है lucrative। सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आपने फिर बजर दबाया है। LUCRATIVE, lucrative। करेक्ट स्पेलिंग है, 20 पॉइंट्स। अगला शब्द है opportunity। एडिफाई स्कूल। OPPORTUNITY। और इस अपॉर्चुनिटी को आपने सही से इस्तेमाल किया है और 20 पॉइंट कमा लिया है। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है मेंडिकेंट। एडिफाई स्कूल नागपुर। MENDECANT। ये गलत जवाब है। मेंडिकेंट की करेक्ट स्पेलिंग है MENDICANT। 10 पॉइंट कम होते हैं एडिफाई स्कूल नागपुर आपके। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट वर्ड, और ये है प्रोप्राइटर। सेंट जॉन्स चंडीगढ़। PROPERITOR। यहाँ नहीं कर रहे वहाँ चैतन्य। टाइम खत्म हो रहा है आपका, अभी बताइए जवाब। PROPERITOR, proprietor। I'm afraid that is the incorrect answer. Proprietor की करेक्ट स्पेलिंग है PROPRIETOR। आपका अगला वर्ड है vigorous। एडिफाई स्कूल नागपुर। VIGOUROUS। आपका जवाब गलत है। vigorous की स्पेलिंग होती है VIGOROUS। आपके 10 मार्क कम हो चुके हैं एडिफाई स्कूल नागपुर। आपका अगला शब्द है remnants। REMINANTS। I'm afraid that is the incorrect answer. Remnants की स्पेलिंग होती है REMNANTS। 10 पॉइंट्स कम हुए एडिफाई स्कूल नागपुर आपके। आखिरी शब्द है क्रूसिबल। सेंट जॉन्स चंडीगढ़। CRUCIBLE। क्रूसिबल की करेक्ट स्पेलिंग यही है। 20 पॉइंट्स कमाए आपने सेंट जॉन्स। वेल प्लेड।
और इसी तरह खत्म होता है हमारा आखिरी गेम जिसका नाम था स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं इस गेम के स्कोर्स। रायन इंटरनेशनल, आपका स्कोर इस गेम में रहा है 0 पॉइंट्स। एडिफाई स्कूल नागपुर, आपका स्कोर इस गेम में -20 हुआ है। और सेंट जॉन्स, आपका स्कोर इस गेम में हुआ है 40 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो सारे राउंड्स हो चुके हैं खत्म। वक्त आ गया है पता लगाने का कि कौन सी टीम है दूसरी टीमों से बेहतर। रायन इंटरनेशनल मुंबई, आप है 3rd पोजीशन पे विद अ टोटल ऑफ 160 पॉइंट्स। एडिफाई स्कूल नागपुर, आपका टोटल स्कोर हुआ है 180 पॉइंट्स एंड यू फिनिश्ड एट 2nd पोजीशन। एंड सेंट जॉन्स चंडीगढ़, आप आ गए हैं 1st पोजीशन पे विद अ टोटल ऑफ 210 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। और शौर्य और चैतन्य, आप दोनों को मौका मिल रहा है हमारे क्वार्टर फाइनल्स में जाने का। कांग्रेचुलेशंस। रविंद्रनाथ टैगोर को एक और शौक था और वो था ट्रैवलिंग। दुनिया के हर कोने में सफर करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इंसानों के बीच बनाई गई सीमाएं और भेदभाव एकदम खोखले और बेबुनियाद है। उन्हें हर कोई समान लगता था। जो हम सोचते हैं, करते हैं, एग्जैक्टली वही दूसरे देशों के लोग भी सोचते और करते हैं। बाहर से शायद हर कोई अलग दिखता हो, लेकिन सबका दिल, सबकी सोच, कहीं ना कहीं सब एक जैसी है। और अगर इस बात में कोई भी शक है तो वो टैगोर की कहानियां और कविताएं दूर कर देती है। His thoughts were so fundamental and simple that they were independent of boundaries and religion. और यही वजह है कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। That's it on today's episode. मैं हूं केसी शंकर और मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। लेकिन तब तक आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.